Greetings from Indore Public School. Hope you all are doing well and stay safe at your home with your family. In last lecture, we had completed till exercise 3.2 of chapter Understanding Quadrilaterals. In this lecture, we will continue from exercise 3.3. Now, exercise 3.3. First question number 1. Given a parallelogram ABCD, you can see question from your book. Given a parallelogram, one parallelogram is given of this shape. A, B, C and D, and diagonals are given. They intersect at point O. Complete each statement along with definition or property used. You know the property of parallelogram. When we discuss kinds of quadrilateral, we already discussed about the properties of parallelogram. Now, first question. AD is equals to dash. AD is equals to BC, because opposite sides are equal. Property used, opposite sides are equal. You know, in parallelogram opposite sides are equal. Second question. Angle DCB opposite angles are equal. Angle C equals to angle A, so we write angle DAB. Opposite angles are equal. Opposite angles are equal in parallelogram. Now, question 1, third question. OC equals to OA. OC is a diagonal. Two diagonals bisect each other, and O is the intersection of diagonals. So OC equals to OA. What we write here? Diagonals bisect one another. एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. Fourth. Measure of angle DAB plus measure of angle CDA. See here, measure of angle DAB. That means this angle, and measure of angle CDA means this angle is equals to 180 degree. क्या होगा? 180 degree होगा, because A and D are adjacent angle. In parallelogram, adjacent angles sum is supplementary, or adjacent angle are supplementary. Adjacent angle sum is supplementary. रीजन भी तीन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन थे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के. 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकते हैं. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज. आपको सिर्फ OC इक्वल्स टू OA लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको रीजन देना पड़ेगा कि OC इक्वल्स टू OA आपने क्यों लिखा.
यू नो डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इक्वल टू 180, किस रीजन से लिखा आपने, बिकॉज एडजेसेंट एंगल सम इज सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है एंड पैरेलल में ट्रांसवर्सल के सेम साइड के साइड एंगल का सम क्या होता है, एंगल सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन पैरेललोग्राम पैरेलल लाइंस आर 180 डिग्री। सो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो उनका सम भी 180 डिग्री होगा। Question 2. Consider the following parallelogram. Figures are given. 5 questions are given. See. Consider the following parallelogram. You can see question from your book. Find the value of the unknown x, y, z. एंगल्स की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें क्या, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, जब उसके ऑल साइड्स इक्वल हो, जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और 90 डिग्री का एंगल बनता है तो रेक्टेंगल बन जाता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज का यूज करके जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगेगी, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, parallelogram is given, name A, B, C and D. This type of question asked in examination, so you have to practice this type of questions with taking different angles value. Only one angle is given, angle B. You have to find X, Y and Z. How can you find? You know angle B equals to angle Y. Angle B is equals to angle D or angle Y. You have to write angle B is equals to angle D. Opposite angles of parallelogram are equal, so you have to write angle B equals to angle Y. You have to write opposite angles of parallelogram. This is the symbol of parallelogram. Opposite angles of parallelogram are equal. आपको कंडीशंस लिखने होंगे, किस रीजन से आपने एंगल बी को एंगल वाई के इक्वल किया। एंगल बी गिवन है कितना, 100 डिग्री, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल बी गिवन है 100 है तो हम क्या लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री, और एंगल वाई भी लिख सकते हैं। एंगल वाई निकल गया, अब हम क्या लिखेंगे, देखिए 100 डिग्री प्लस एक्स, एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल, दैट मीन्स 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू नो अभी हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम, और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देन 100 डिग्री इधर प्लस में है, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट गिव्स एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू। यू नो एक्स इक्वल टू जेड, वाई opposite angles are equal, opposite angles of parallelogram are equal, so z is equals to x, अगर 80 है तो z भी क्या होगा, 80 होगा। आपने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली, y की भी और z की भी। x की वैल्यू आई 80, z की वैल्यू भी 80 एंड y की वैल्यू 100। इसमें और इसमें अपोजिट एंगल्स का रिलेशन है, इसमें अपोजिट एंगल्स का, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट,
Figure is this: x, y and z. You have to find the value of x, y and z. Naming, you have to name this a, b, c and d. किसी फिगर में अगर नेमिंग नहीं भी दिया हुआ है तो आप उसको नेमिंग कर सकते हैं, बट नेमिंग ऑर्डर क्या फॉलो होगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना है. सी हियर y plus 50 degree, y plus 50 degree is equals to 180 degree. Adjacent angle sum, adjacent angles are supplementary. एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देन y इक्वल्स टू 130 डिग्री. y की वैल्यू आ गई 130. अगर ये दो लाइन पैरेललोग्राम है एंड BC AB के पैरेलल है तो y और z में क्या रिलेशन होगा, these two angles are alternate interior angle. So y equals to z, what we write, alternate angles are equal. ये अल्टरनेट कैसे हुए, रीजन AB पैरेलल है CD के, AB क्या है, पैरेलल है CD के, सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इक्वल्स टू भी 130 हो जाएगा. नाउ X और Y क्या है, X और Y में क्या रिलेशन है, अपोजिट एंगल्स है. सो X इक्वल्स टू Y अपोजिट एंगल्स of parallelogram are equal. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो x, y की वैल्यू हमने 130 कैलकुलेट की है, x भी क्या हो जाएगा 130. इन दिस फिगर x, y and z all are 130 degree. Question 2, third part. Figure is this. You have to name A, B, C, D and the intersection is O. Now see here, this is a symbol of 90 degree angle. So x is equals to, you have to write 90 degree. Region is vertically opposite angle, vertically opposite angle. इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों बोलते हैं, बोथ डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. O is the vertex of intersection of diagonals, so this is opposite of this O vertex, so this is called vertically opposite angle. X is equals to 90 degree. Now in triangle C, in triangle AOB, सिर्फ आपको AOB ट्रायंगल देखना है, A, O and B, सिर्फ ये ट्रायंगल आपको देखना है और सभी को भूल जाना है. इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, एंगल x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री क्या देगा आपको 180 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. x की वैल्यू हमने 90 डिग्री यहां से कैलकुलेट किया, 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन y प्लस 90 प्लस 30 गिव्स 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 60 डिग्री. y की वैल्यू हमने 60 डिग्री कैलकुलेट कर ली. x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180, यहां से हमने y की वैल्यू 60 डिग्री कैलकुलेट की. नाउ y एंड z में क्या रिलेशन होगा,
चूंकि ये पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो वाई एंड जेड आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो वाई इक्वल्स टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, so z equals to 60 degree, z equals to 60, z की वैल्यू 60 डिग्री। क्वेश्चन 2, फोर्थ क्वेश्चन, x y z, you have to find the value of x y z, angle b 80 degree is given, angle b equals to 80 degree। क्वेश्चन में नेमिंग नहीं किया हुआ, मैंने नेमिंग किया है ए बी सी डी, आप कहीं से भी नेमिंग करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने नेमिंग के अकॉर्डिंग एंगल्स को राइट करना, लिखना है, पी क्यू आर एस टी कहीं से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, कुछ भी। सो y इक्वल्स टू 80 डिग्री, y इक्वल्स टू क्या होगा 80 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल रिलेशन क्या है, दिस एंगल्स आर इक्वल, so you have to write opposite angles of parallelogram are equal, opposite angles क्या होते हैं, equal होते हैं, y equals to 80 डिग्री हो गया। now x plus 80 degree is equals to 180 because angle A and angle B are adjacent angle and sum of adjacent angle is 180 degree, adjacent angles are supplementary, adjacent angle क्या होते हैं, supplementary होते हैं। now x equals to 180 degree minus 80 degree, x is equals to 100 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री। नाउ सी रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सो z इक्वल्स टू 80 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स, angles are equal because AB parallel to CD given, AB parallel है CD क्या, and these two angles are corresponding angles, x की वैल्यू भी हो गई, y भी हो गया और z भी हो गया। now question 2 fifth part, figure is this, x y and z, you have to find value x y and z। see here y is equals to 112 degree, y equals to 112 degree, region opposite angles of parallelogram are equal, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल का रिलेशन है y में। नाउ ये अगर हमें 112 डिग्री मिल गया तो सी इन ट्रायंगल ए सी डी, सिर्फ आपको ए सी डी देखना है, इसको भूल जाना है। इन ट्रायंगल ए सी डी, ACD में आपको क्या मिला 40 डिग्री है ये एंगल, ये 112 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है, 40 प्लस 112 क्या होगा 152 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री,
Now x equals to 180 degree minus 152 degree, x is equals to 28 degree. आपने 40 एंड 112 को ऐड किया, 152 मिलेगा, 152 इधर LHS से RHS में शिफ्ट होगा, क्या मिलेगा 28 डिग्री. AB एंड CD आर पैरेलल, सो X एंड Z में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर. सो X इज इक्वल टू Z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नो Z और X में जो रिलेशन है, तो X की वैल्यू जो है वही Z की वैल्यू होगी, Z इक्वल टू 28 डिग्री. आपने X की वैल्यू फाइंड कर ली, Y की वैल्यू हो गया और Z की वैल्यू. इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट याद होना, मतलब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, माइंड में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे. उसके डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके साइड्स की, उसके एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है. हमने सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से इस चैप्टर के पार्ट 2 में हमने डिस्क्राइब किया है. तो अगर किसी का छूट गया हो तो आप प्लीज पार्ट 2 को फिर से देखें, उसे नोट करें, लर्न करें, याद रखें. क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम. अगर एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मींस 4 लेटरल में साइड, अगर 4 साइडेड फिगर अगर पैरेललोग्राम होगा तो वो इस शेप का दिखेगा, और पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. नाउ एंगल B प्लस एंगल, फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या ये हो सकता है? एंगल B और एंगल D 180 डिग्री हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो कैन बी बट need not be. हो भी सकते हैं अगर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल शेप का हो, तो एंगल B और एंगल D 90 प्लस 90 180 डिग्री हो सकता है. AB इक्वल्स टू DC, AB इक्वल्स टू DC, ये और ये साइड इक्वल है. AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बट BC दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर. तो ये हो सकता है क्या? सिंपल आंसर इज नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसीलिए आंसर नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल इन गिवन कंडीशन. जो दिया हुआ है गिवन डेटा, इसमें क्या है? इक्वल नहीं है. एंगल A इक्वल्स टू 70, एंगल C इक्वल्स टू 65. एंगल A और एंगल C भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ये 70 डिग्री दिया हुआ है और ये 65, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, बट गिवन डेटा में क्या है? अनइक्वल दिया हुआ है. नाउ दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट lecture from question number 4. Thank you. Stay safe and keep learning. Thank you.